Hello friends, today we will talk about Excel. Okay, because many of my friends spoke me for making the video in Excel. Okay, that's why even today or from today I will also upload the video for Excel similarly. Okay, so let me start with Excel, and today I will start with VLOOKUP formula Excel in Excel. Okay, and later on I will upload the video step by step and different formula which is related to Excel. So let me start with Excel. So let me start. So दोस्तों, this is my desktop, and here this is my this PC, and I will click on, because whenever we will apply the VLOOKUP formula on Excel file, we need a raw data, a Excel raw data file on which we will work for the formula of VLOOKUP. So here is this PC, and in the D drive I have already keep the Excel different Excel files. So I will click on Hamdard folder. So this is my Hamdard folder. I will click on this, and you can see here different Excel file is here. Okay, so this is verification data 14th of May, and this verification data is of 23rd of May, and Hamdard verification. So different date and Excel file. Okay, so I will start 14th of verification data Excel files. I will click on this. Okay, so you can see here, a large number of data is available in this Excel file. So let me count this data. Control Shift, then I will press Control Shift and down arrow. So you can see here 207 total data is available. Okay, without removing the filter, because you can see in our headline section filter is applied. That's why I will remove. So how will I remove the filter command in Excel? I will select Shift space all the arrows. Okay, then I will press Control Shift L. Then you can see here filter is removed here. Okay, so now I will count the total data. Once again we will press Control Shift down arrow. So you can see here total data is 661, and it means 661 data. Okay, only one column, but only one column, 661 data is available. But now I will talk about column. So this is my first column, this is second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. I mean 17, 18, around 17, 18 columns is available in this Excel file. Okay, so this is a large amount of data. Okay, so we will apply VLOOKUP formula. तो दोस्तों इसमें क्या है ना कि इसमें जो है बहुत सारे डेटा हैं, तो मैं आपको VLOOKUP बताना चाहता था एक्सेल में. तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ. ये देखो मैंने क्लोज कर दिया. डोंट सेव. और मैं एक इसी से डेटा को मैं इसी से डेटा लेकर के मैंने एक दूसरा फाइल बनाया है जो मेरे डेस्कटॉप पे है. आप यहाँ पे देख सकते हैं. यह है एक्सेल रॉ डेटा और यह है एक्सेल प्रैक्टिस डेटा. मैंने उसी मेन जो है जहाँ पे था ना 661 डेटा, मैंने उसी से डेटा लेकर के अलग छोटा डेटा कम लिया. मैंने 20-25 डेटा लिया है उसमें से, और मैं नया फाइल बनाया है एक्सेल का, ताकि मैं उस पर आपको इजीली भी फार्मूला को अप्लाई करके दिखा सकूं. क्योंकि वो बहुत बड़ा डेटा है ना. जब मैं आपको बताऊंगा ना उतने बड़े डेटा पे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो कंफ्यूजन हटाने के लिए हम
जिसमें कम डेटा हो उस फाइल पे काम करेंगे। तो ये हमारा 2 फाइल है। तो मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ एक्सेल रॉ डेटा, ये है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूं या जूम आउट कर दूं, देखो आपको इतना दिखेगा नहीं। तो मैं इसका साइज़ जो है थोड़ा सा और छोटा हो जाओ। चलो इतना पे रहने देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, वी लुकअप की बात करते हैं, ठीक है। वी लुकअप में अगर हम आएंगे, मतलब एक्सेल में जो वी लुकअप फार्मूला जो अप्लाई किया जाता है, तो वो फार्मूला अप्लाई क्यों करते हैं वी लुकअप को, ठीक है, और कितने तरह से अप्लाई हो सकता है वी लुकअप एक्सेल में, ठीक है। मतलब आप जब भी इसकी तैयारी करोगे तो कितने तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो आज हम वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंसेप्ट concept behind the VLOOKUP formula. Okay, so I will type here VLOOKUP. Okay, तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि VLOOKUP जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, VLOOKUP stands for वर्टिकल लुकअप। ओके, तो दोस्तों वी लुकअप का जो मतलब होता है ना, ये यहाँ पे वी का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, और लुकअप का मतलब होता है कोई चीज़ टू फाइंड, है ना, टू फाइंड आउट। किसी चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है तो आप उसको मतलब लुकअप के रूप में ले सकते हैं। लुकअप मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज़ को ढूंढना, है ना, निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, अब ये हमारा एक्सेल का फाइल है, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी होल्ड। ठीक है दोस्तों, अब वी लुकअप जो आप फॉर्मूला अप्लाई जो करोगे, मैं आपको बता दूं कि वी लुकअप के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो भाई, तो आर्ग्यूमेंट जो होंगे वो टोटल 4 आर्ग्यूमेंट होंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ वी लुकअप का जो पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा लुकअप वैल्यू, ठीक है। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा टेबल एरे, ठीक है। तीसरा जो होगा वो होगा कॉलम इंडेक्स नंबर, और लास्ट जो होगा आर्ग्यूमेंट वो होगा मैच टाइप, ठीक है। तो ये वी लुकअप फार्मूला के अंदर 4 आर्ग्यूमेंट अपन को यूज करना है, ठीक है। पहला है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, मैच टाइप, ठीक है। तो मैं आपको इन चारों के बारे में पहले बता देता हूँ कि लुकअप वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सपोज कि आप मान लो कि आप जो है मान लो कि आप मुंबई में रहते हो, ठीक है ना। आपने क्या किया कि मुझे आप अपना एक एड्रेस सेंड किया कि विकास मेरा ये एड्रेस है, आप इस एड्रेस पे आ जाओ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, आपने जो एड्रेस भेजा है उसी एड्रेस के बेस पे मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चाहे मैं बाय फ्लाइट जाऊं या बाय ट्रेन जाऊं, बाय बस जाऊं, बाय बाइक जाऊं, ठीक है, बस मुझे उस एड्रेस तक पहुंचना है। तो वही होता है लुकअप वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो लुकअप वैल्यू ये हो गया, लेकिन इस लुकअप वैल्यू को कौन से सर्कल में ढूंढना है। तो भैया आपने जो एड्रेस हमें भेजे हो, मुंबई का जो ये एड्रेस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे मुंबई सिटी को देखना पड़ेगा ना। पूरे मुंबई सिटी में मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानो कि मैं अभी मुंबई में नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, मतलब आउट ऑफ मुंबई हूँ, मतलब मैं कोलकाता में हूँ या फिर दिल्ली में हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुंबई की एरिया में देखूँगा कि ये वाला एड्रेस कहाँ पे है
है ना, मुंबई की एरिया। तो मुंबई की जो पूरा एरिया होगा उसी में ये लुकअप वैल्यू कहीं ना कहीं मतलब ये वाला एड्रेस होगा। तो उसी बेस पे क्या होगा कि हम आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये होता है लुकअप वैल्यू, आपने जो एड्रेस दिया। और टेबल एरिया क्या होगा, पूरा मुंबई सिटी क्या हो जाएगा, टेबल एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इस बेस पे नहीं, मैं आपको डायरेक्ट एक्सेल फार्मूला से यहाँ एक्सेल फाइल से आपको बताता हूँ। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ये थ्योरेटिकल में उतना मैं अंदर नहीं ले जा सकता। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल भी इधर करता हूँ पेस्ट, और फिर मैं आपको एक्सेल देखो। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले एक्सेल में आप कोई भी फार्मूला यूज़ करते हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो होता है वो होता है इक्वल साइन से। ठीक है, अगर आप इक्वल साइन नहीं दोगे तो आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होने वाला। ठीक है, एज इट इज़। तो आपको सबसे पहले इक्वल तो देना ही है, कोई भी फार्मूला आप लगा रहे हो एक्सेल में। इक्वल दिया, देन आई विल टाइप हियर VL, देन आई विल प्रेस टैब बटन, इट विल बी ऑटोमेटिकली कवर फुल VLOOKUP टिल दी ओपनिंग ब्रैकेट। ओके, तो ये देखो आपको ओपनिंग ब्रैकेट तक ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, अगर आप टैब बटन प्रेस करते हो तो। अब क्या है कि इसमें देखो 4 आर्ग्यूमेंट है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। इसको आप रेंज लुकअप बोलो या मैच टाइप, दोनों सेम थिंग है। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू के जगह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लुकअप वैल्यू। और देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, फार्मूला के अंदर जितने भी आप आर्ग्यूमेंट पास करोगे, हर आर्ग्यूमेंट के एंड में आपको क्या करना है, कॉमा से उसे सेपरेट करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, तो मान लो कि मैं इसमें ले लेता हूँ ये वाला लुकअप वैल्यू। ठीक है, एम्प्लॉय नेम में ले लिया मैंने लुकअप वैल्यू, देन कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट जो यहाँ हाईलाइट हो रहा है, टेबल एरे, मतलब आपको इस नाम को किस टेबल में ढूंढना है। तो भाई इसी टेबल में ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट देन डाउन एरो वंस एंड वंस अगेन राइट एरो। तो ये क्या होगा कि आपका पूरा फाइल सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर इसको कॉमा से सेपरेट कर दो। अब पूछ रहा है कि उस लुकअप वैल्यू का यूज करके आपको कौन सी कॉलम का डेटा चाहिए। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो देखो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि जहाँ से आपने लुकअप वैल्यू दिया, मैंने दिया था यहाँ एम्प्लॉय नेम से लुकअप वैल्यू, तो आपका जो कॉलम की जो काउंट होगा वो लुकअप वैल्यू से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉलम की काउंटिंग कहाँ से करनी है, लुकअप वैल्यू, आपने जहाँ से लुकअप वैल्यू लिया है वो आपका फर्स्ट कॉलम होगा। तो देखो हमने यहाँ से लिया था, इस कॉलम से लिया था लुकअप वैल्यू, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, देन ये हो गया सिक्स्थ। तो उस लुकअप वैल्यू के बेस पे आपको किस कॉलम का डेटा चाहिए, एक्सेल के किस कॉलम का डेटा चाहिए। सपोज मान लो कि आपको ये चाहिए डी कॉलम का डेटा। ठीक है, या फिर मान लो कि आपको ई कॉलम का डेटा चाहिए। तो सिंपली आप ई कॉलम का जो डेटा चाहिए, तो सिंपली क्या करोगे, आप कॉलम की नंबर काउंट कर लो यहाँ से, लुकअप वैल्यू के मतलब लुकअप वैल्यू जहाँ पे आपने दिया था वहाँ से स्टार्ट करके। तो मैंने इस वाले कॉलम से लुकअप वैल्यू लिया था, तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा और देखूँगा कि ई कॉलम वाला जो है कितने कॉलम नंबर पे आता है। तो आई विल काउंट दिस, ये हो गया ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज़ फिफ्थ। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये फिफ्थ ई कॉलम का चाहिए, तो मैं कॉलम नंबर के लिए यहाँ पे टाइप करूँगा 5, फिर इसको मैं कॉमा से सेपरेट करूँगा। अब ये पूछता है कि मैच टाइप। देखो दोस्तों मैच टाइप में आपको दो चीज़ यहाँ पे आता है, एक आता है ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच, और एक होता है फॉल्स एग्जैक्ट मैच। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है और फॉल्स मैच क्या होता है। तो सबसे पहले इन दोनों में अगर डिफरेंस करें तो मैं आपको बताऊं कि अप्रोक्सीमेट मैच वो चीज़ होता है, मान लो कि आप कोई डेटा VLOOKUP का यूज करके फाइंड करना चाहते हो किसी कॉलम का डेटा। ठीक है, और मान लो कि उस कॉलम में आपको फाइंड करना है, और जो है मान लो कि उस कॉलम में 5 है। ठीक है, और किसी में जो है 5 है, तो किसी में
सॉरी 4.9 है, किसी में 4.5 है, किसी में 4.3 है ना। मतलब इस तरह की जब डेटा हो, है ना, तो उसमें फाइंड करने के लिए आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट, है ना। अप्रॉक्सीमेट भी डिपेंड करता है दो कंडीशन पे, ठीक है। तो चलो मैं इसको अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँ, छोड़ सकता हूँ। मैं अभी जो बात करूँगा वो अभी मैं सिर्फ एग्जैक्ट मैच के बारे में बात करूँगा, ठीक है। इसके बारे में, ये अप्रॉक्सीमेट मैच के बारे में, इसका एक डेटा सेट जो होगा रॉ डेटा, वो एक डिफरेंट डेटा होगा। तो मैं वो डेटा बना के मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ समझते हैं एग्जैक्ट मैच, जिसके लिए आपको यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ेगा। एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है दोस्तों कि एग्जैक्ट मुझे वही चीज़ चाहिए जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ, है ना, उसके इर्द गिर्द का नहीं। मतलब अप्रॉक्सीमेट करके मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि मैं ढूंढ रहा हूँ 5 तो मुझे उसके मतलब इर्द गिर्द का कोई वैल्यू दे दे, जैसे हो गया 4.9, 4.8 समथिंग समथिंग, ठीक है। तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ 5, अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ 5, तो इट मीन्स मुझे 5 ही चाहिए। सिमिलरली अगर मैं ये कॉलम सर्च कर रहा हूँ तो ये जो भी है मुझे यही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट मैच का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो एक्सेल के अंदर, या तो आप फॉल्स मैनुअली यहाँ पे टाइप कर दो, और नहीं तो फॉल्स के लिए कोड होता है, वो होता है 0। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 होता है, ठीक है। और ट्रू देना है अप्रॉक्सीमेट, इसका मैं बाद में चर्चा करूँगा। फिलहाल मैं एग्जैक्ट मैच की बात करता हूँ। आप इतना समझिए कि एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कोड यूज करना है, और नहीं तो आपको फॉल्स लिखना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 यूज करता हूँ, देन ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, और एंटर कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखो, एंटर मैंने जैसे ही किया, मुझे 5th कॉलम की डेटा मुझे मिल गया। ये देखो, है ना, ये देखो मुझे मिल गया ना। मतलब ये इसका जो एम्प्लॉय नेम है ये है, ठीक है। मेरा लुकअप वैल्यू ये था, इसके बेस पे मुझे इस कॉलम का चाहिए डेटा ई का, तो मुझे ये दे दिया। अब सिमिलरली क्या है कि इसके नीचे ये नेम भी है, आपने एक बार फॉर्मूला लगा दिया ना, तो ये सब पे अप्लाई होगा। जस्ट आपको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आओ और कंट्रोल डाउन एरो करके लास्ट में जाओ, फिर ऐसे करो, मतलब राइट एरो करो, फिर कंट्रोल शिफ्ट अप एरो कर दो एक बार, ठीक है। उसके बाद कर दो इसको कंट्रोल डी, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल डी करोगे तो ये सारा डेटा ले लेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ रहे हो कि वी लुकअप क्यों यूज करते हैं, है ना। आपने एक वैल्यू निकाल लिया और उसके बेस पे इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, ठीक है। तो यही होता है वी लुकअप। अब हमने जो यहाँ पे फाइंड किया है, इसको मैं क्या करता हूँ, टाइप कर देता हूँ कि मैंने कौन सा फाइंड किया है, ये वाला, ठीक है। ऑल्ट ओ सी ए कर दो इसको, कंट्रोल एस, ठीक है दोस्तों। तो ये हो वी लुकअप। अब दोस्तों ऐसा है कि मल्टीपल कंडीशन कैसे हो सकता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया मेरा, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, तो इसको बॉर्डर को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट एच बी एन करूँगा, ठीक है, नो बॉर्डर, बी एन मतलब नो बॉर्डर। तो बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि ये कॉलम है और इसमें से कोई सा भी आप नेम उठा लो, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ तो दोस्तों ये जो थी, ये था नॉर्मली वी लुकअप कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि मान लो कि एक एक्सेल का ये आपका फाइल है और सेम शीट पे वी लुकअप लगाना है यहाँ पे कहीं भी, तो आपने लगा दिया वी लुकअप। यहाँ पे किस तरह से लगाना है वो आपने देख लिया। अब क्या है कि आपका लुकअप वैल्यू जो है, इस मान लो कि इसी में से हमने लुकअप वैल्यू भी लिया और इसी में से लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है कि
अब सीट मान लो कि ये रॉ डेटा पहला सीट है और ये सीट 2 है, सीट 2 में कुछ नहीं है, सीट 3 में भी कुछ नहीं है। मान लो कि आपको लुकअप वैल्यू यहाँ से इस तरह से दे देगा, इसको कॉपी करके सीट 2 में दे देगा, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं, ऑल्टो CA कर देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जूम कर दिया और ये देखो ये एम्प्लॉय नेम दे दिया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब ये रॉ डेटा मतलब जहाँ पे हमारा सारा डेटा है, ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया रॉ डेटा, मतलब यहाँ पे सारे डेटा हैं। लेकिन दूसरे सीट में अगर जाएं तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एम्प्लॉय नेम वाला डेटा हमको दे रखा है। अब जो है क्वेश्चन ये है कि VLOOKUP के अंदर कि कहेगा कि आपको लुकअप वैल्यू ये बनाना है और इन सब का डेटा फाइंड करो यहाँ से, ठीक है। और आपको बोल दे देगा कि एम्प्लॉय नेम ये जो है इन सब की ऑर्डर कोड बताओ क्या है, ठीक है दोस्तों। कहेगा कि इन सब का जो है ऑर्डर कोड बताओ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ऑल्टो CA कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। कहेगा लुकअप वैल्यू ये दिया हुआ है और हमारा रॉ डेटा मतलब जहाँ पे सारा जो है एक्सेल का जो डेटा है यहाँ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बताओ कि ऑर्डर आईडी इस एम्प्लॉय का क्या है, इस एम्प्लॉय का क्या है, इसका क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एम्प्लॉय का निकालते हैं ऑर्डर कोड, ठीक है। ऑर्डर कोड क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इक्वल VLOOKUP। देखो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि डिफरेंट हो सकते हैं कि आपको सेम एक्सेल फाइल पे लगाना पड़े VLOOKUP, या फिर किसी अदर सीट में रहेगा डेटा उस टाइप से लगाना पड़े तो आप वो भी लगा सकते हैं। या फिर एक्सेल की दो फाइल है, एक फाइल ये है और दूसरी फाइल है, आपको उस पर भी VLOOKUP लगाना आना चाहिए। और मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस भी दिखाऊँगा कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे VLOOKUP टाइप किया और टैब बटन दबाया, तो मैं इसको लुकअप वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे हम कॉमा कर देते हैं। अब कहता है टेबल एरे, तो टेबल एरे के लिए क्या है कि हमारा रॉ डेटा यहाँ पे इस वाले सीट में है, सारा डेटा टेबल एरे वहीं से लेंगे। तो इसके लिए ये सीट पे जाने के लिए, पहले वाले सीट पे जाने के लिए आपको कंट्रोल पेज अप करना पड़ेगा, ठीक है, पेज अप। उसके बाद आप इस तरह से आइए, कंट्रोल शिफ्ट देन राइट एरो और देन वंस डाउन एरो, ये पूरा डेटा आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं कि जब मैं नॉर्मली VLOOKUP लगाया था सेम एक्सेल फाइल पे, तो वहाँ पे दोस्तों हमने टेबल का रेंज दिया था ऐसे A1 से लेके F25 तक। लेकिन जब आप अलग अलग सीट पे VLOOKUP लगा रहे हो या फिर अप्लाई कर रहे हो, VLOOKUP फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या होगा दोस्तों कि जब आप टेबल एरे लोगे, मतलब ये टेबल एरे, तो ये एक्सेल क्या करेगा बाय डिफ़ॉल्ट किस सीट से आप ये टेबल एरे ले रहे हैं उसका नाम ये दे देगा। ये देखिए सीट का नाम क्या है, रॉ डेटा, और रॉ डेटा के बाद आपको एक एक्सक्लामेशन मार्क आएगा, मतलब सीट नेम के बाद एक्सक्लामेशन मार्क आएगा, देन उस सीट रॉ डेटा का रेंज देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। मैं आपको साथ साथ में प्रैक्टिकली बताता हूँ और डिफरेंस भी दिखाता जाता हूँ, ठीक है। तो आपको कॉमा कर देना है। कॉमा देने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो दोस्तों मुझे क्या चाहिए था, ऑर्डर कोड चाहिए। तो ऑर्डर कोड दोस्तों ये सी कॉलम में है। तो मैं लुकअप वैल्यू हमारा ये था, तो यहाँ से कॉलम की काउंट करो 1 2 3, मतलब ऑर्डर कोड की जो डेटा है वो 3 नंबर कॉलम में है। तो मैं यहाँ पे कॉलम नंबर दूंगा 3 देन कॉमा। अब एग्जैक्ट मैच मुझे चाहिए तो मैं 0 प्रेस करूँगा और फिर ब्रैकेट से क्लोज कर दूंगा और फिर इसको एंटर कर दूंगा। तो देखो दोस्तों मुझे क्या हो गया, ऑर्डर आईडी मुझे मिल चुका है, किसका, साजिद का। अब मैं चेक करूंगा कि ये सही है कि नहीं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और अपने मेन फाइल में जाता हूं और ये एम्प्लॉय नेम में है। तो मैं इसको क्या करता हूं, इस तरह से सेलेक्ट करके कंट्रोल F कर दूंगा
और नेम को प्रेस करूँगा, देन एंटर कर दूँगा। तो आप देख रहे हो पहले वाले पे मुझे मिल गया है। ठीक है, तो इसका जो है ऑर्डर कोड ये है, आप देख लीजिए इसका ऑर्डर कोड क्या है, 11411। तो यहाँ देख लेते हैं 11411। उसके बाद है हाइफन ऑर्डर हाइफन, उसके बाद है हाइफन ऑर्डर हाइफन, उसके बाद देखते हैं 290320। तो देखते हैं 320 एंड 21833। तो यहाँ पे देखिए 8333, मतलब हमने सही फाइंड किया है डेटा को। ठीक है, मतलब ये हमारा सही है। अब हमने एक का निकाल लिया, तो सबका निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस नेम पे आना है, कंट्रोल डाउन एरो करोगे तो ये डेटा के लास्ट में चले जाओगे आप। फिर राइट एरो करोगे तो एक बार इधर आ जाओगे, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो कर दो, डेटा तक आओगे, देन आपको कंट्रोल डी कर देना है, तो सबका ले लेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो सबका ऑर्डर आईडी मुझे यहाँ पे मिल चुका है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया वी लुकअप। एक हुआ कि नॉर्मल सेम सीट पे आपको वी लुकअप लगाना है, एक हुआ कि सीट वाइज किसी सीट दूसरे सीट पे दिया रहेगा तो वी लुकअप आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब सपोज कि आपको क्या करना है कि मैंने यहाँ पे F2 से एडिट किया। मान लो कि आपको क्या करना है कि मुझे इस बार ना ऑर्डर कोड नहीं चाहिए भाई, मुझे इस बार ना मान लो कि आउटलेट नेम चाहिए, है ना, शोरूम का नाम चाहिए, आउटलेट नेम। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको क्या करता हूँ, इसी पे पेस्ट कर लो या फिर एक नया पेस्ट कर लो यहाँ पे। एक सेकंड लगता है, कॉपी हट गया, यहाँ से कॉपी किया और सीट नंबर 2 पे आया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऑल्टो सी है, सॉरी ऑल्टो सी है। ठीक है, अब मुझे इस बार क्या चाहिए, आउटलेट नेम चाहिए। तो सिमिलरली आप उसी तरह से फॉर्मूला लगा लो, और नहीं तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये आ रहा है नॉट अवेलेबल। ठीक है, नॉट अवेलेबल आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आउटलेट नेम चाहिए ना, इसको कॉपी करके अभी की बार क्या चाहिए, ऑर्डर कोड नहीं चाहिए, आउटलेट नेम चाहिए। तो आपको इसी के ऊपर कॉपी कर दो आउटलेट नेम, देन ऑल्टो सी कर लो, और फिर इसी फार्मूला को एडिट करो। एडिट करने के लिए आपको अगर फंक्शन की है तो F2 दबाना पड़ेगा, नहीं तो FN के साथ F2 प्रेस करना पड़ेगा। तो ये आपका फार्मूला एडिटेबल मोड पे हो जाएगा। एडिटेबल मोड पे जैसे ही हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज करना है। कॉलम नंबर चेंज तो करना है, लेकिन पहले देखना है कि आउटलेट नेम जो है किस कॉलम में है। तो आप रॉ डेटा में आ जाओ, आपका ये लुकअप वैल्यू था यहाँ से, तो आप काउंट करो कॉलम की और आउटलेट नेम की कॉलम जानो क्या है। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको आना है सीट 2 में, और मैनुअली इधर को शॉर्टकट से आना चाहते हो सीट 2 में तो कंट्रोल पेज डाउन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये देखो हम आ गए। फिर से इसको FN के साथ F2 करके एडिट कर लिए, और यहाँ पे हम कॉलम नंबर इस बार 6 टाइप करेंगे आउटलेट नेम के लिए, और एंटर कर देंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इस बार आउटलेट नेम आ चुका है। फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट एरो दबा के यहाँ आएंगे, देन कंट्रोल डाउन एरो करेंगे, डेटा के लास्ट में चले जाएंगे। आप देखिए आ गए लास्ट में। फिर राइट एरो एक बार करेंगे, और फिर कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। तो ये देखो दोस्तों, कहाँ आउटलेट हेडिंग को ले रहा है, तो शिफ्ट दबा के आपको एक बार डाउन एरो करना है। ठीक है, अब इसको कर देना है कंट्रोल डी। तो देखो दोस्तों, आउटलेट नेम आ गया है सबका। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑल्ट ओ सी कर देता हूँ कॉलम विड्थ सेट करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है वी लुकअप। तो आप समझ सकते हैं कि वी लुकअप कितना मज़ेदार चीज़ है। मतलब एक्सेल के किसी कॉलम की डेटा आपको चाहिए तो वो आप वी लुकअप का यूज़ करके इजीली आप उसे ला सकते हो। ठीक है,
मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, देन इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वी लुकअप हमने अप्लाई किया, ये किया एक सीट में रॉ डेटा है तो दूसरे सीट में वी लुकअप लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लो दोस्तों ये रॉ डेटा हमारा एक एक्सेल का फाइल है। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा एक्सेल का फाइल ओपन कर लेता हूँ। देखो ये है ना एक्सेल प्रैक्टिस, ये एक और फाइल है हमारे पास। तो दोस्तों अभी क्या है, हमारे पास दो एक्सेल की फाइल है, एक है एक्सेल प्रैक्टिस डेटा और एक है देख लेते हैं कौन सा है। आप देख सकते हो एक्सेल रॉ डेटा, ये देखो है ना एक्सेल रॉ डेटा, और एक है एक्सेल प्रैक्टिस डेटा, एक है एक्सेल रॉ डेटा। दो फाइल हमारे पास। अब इसमें हमें क्या करना है, वी लुकअप अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा मेन डेटा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है कि अब मैं उस फाइल में जाता हूँ एक्सेल की प्रैक्टिस वाले में। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो जूम कर दिया। नंबर ऑफ काउंट डेटा जो है वो है 24। ठीक है, और हेडिंग मिला के 25 है। ठीक है, तो इसमें कहता है क्या, ऑर्डर आईडी दिया हुआ है, मतलब आपको लुकअप वैल्यू जो है ऑर्डर आईडी को बनाना है। ठीक है, और लुकअप वैल्यू ऑर्डर आईडी को बनाते हुए मान लो कि आपको इसमें से ये हो गया हमारा ऑर्डर आईडी। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारा ऑर्डर आईडी है। तो यहाँ से अब मान लो कि ये ऑर्डर आईडी कॉलम 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, कॉलम 1 क्यों हुआ, क्योंकि इस बार जो लुकअप वैल्यू बनेगा वो बनेगा ऑर्डर आईडी, और हमने आपको बोला था पहले कि आपको जो है कॉलम की जो काउंट करोगे वो आपके लुकअप वैल्यू से स्टार्ट होगा। तो इस बार जो है दोस्तों इस फाइल में दे रखा है लुकअप वैल्यू ऑर्डर आईडी, तो हम इसमें देख रहे हैं ऑर्डर आईडी यहाँ पे है, तो कॉलम की जो काउंटिंग होगी वो यहाँ से होगी। तो यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह से होगी। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ इस बार, ऑर्डर कोड का यूज करके मुझे ये वाली डेटा चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर नेम चाहिए। क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर नेम चाहिए। तो देखो मैं कैसे करूँगा दोस्तों, सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। सॉरी, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर नेम। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ऑल्ट-C कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको लगाना है वी लुकअप फार्मूला। तो अगेन आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल साइन देना है, VL प्रेस करना है, देन टैब प्रेस कर देना है। तो लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया, देन कॉमा करेंगे। अब टेबल एरे, दोस्तों टेबल एरे के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरे एक्सेल फाइल पे जाना पड़ेगा। तो मैं ऑल्ट टैब प्रेस करूँगा, ये होल्ड हो जाएगा। देन क्या करूँगा, मैं टैब बटन प्रेस करूँगा। अगर आपको फाइल में मान लो आगे जाना है तो टैब, देखो एक टैब, ये दूसरा टैब, टैब जितना करोगे ये आगे जाएगा। और शिफ्ट दबा के टैब अगर करोगे तो ये पीछे इस तरह से आएगा। तो मुझे ये वाली फाइल चाहिए एक्सेल की, एक्सेल रॉ डेटा, तो मैं इस पर आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जब आप टेबल एरे देने जा रहे हो तो एक चीज़ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अलर्टनेस पर्पस। ओके, आपको जो टेबल एरे जो सेलेक्ट करना है ना, वो आपको सबसे पहले देखना है कि लुकअप वैल्यू कहाँ पर है। तो दोस्तों लुकअप वैल्यू जो है हमारा ये है ऑर्डर कोड, तो आपको टेबल एरे यहीं से बनाना है। ठीक है दोस्तों, यहीं से बनाना है। आप अगर मान लो कि आपका लुकअप वैल्यू ये है ऑर्डर कोड और आप टेबल एरे यहाँ से बनाओगे तो आपको फाइंड ही नहीं होगा डेटा। ठीक है, मतलब आपके लुकअप वैल्यू से लेफ्ट साइड टेबल एरे नहीं जाएगा, राइट साइड जा सकता है। ठीक है, राइट साइड में देखो मुझे डेटा क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर नेम, लेकिन फिर भी इसके अलावा ये वाला डेटा है, ये वाला डेटा है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर कोड लुकअप वैल्यू से लेफ्ट आप नहीं जा सकते। तो मैं जो टेबल एरे बनाऊंगा वो यहीं से बनेगा जहां से लुकअप वैल्यू स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आपको करना है स्टार्ट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो देन राइट एरो कर दिया।
अब दोस्तों सीट वाले में मैंने आपको दिखाया था कि जब आपने टेबल एरे बनाया था तो उसमें क्या हुआ था कि सीट का नाम देन एक्सक्लामेशन मार्क आया था। लेकिन जब आप मान लो कि एक्सेल की दो फाइल है और आपको किसी अदर फाइल पे VLOOKUP आप यूज करने जा रहे हो ना, और उस टाइम पे आप जब टेबल एरे बनाओगे तो देखो ये किस तरह से नेम सेलेक्ट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या करेगा, ये बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट करेगा और फिर आप जो दूसरे एक्सेल फाइल से जो आप टेबल एरे जो बना रहे हो उस एक्सेल फाइल की नाम क्या है। तो भाई उस एक्सेल फाइल का जो नाम है वो है एक्सेल रॉ डेटा। तो बॉक्स ब्रैकेट के अंदर उस एक्सेल फाइल की नेम आ जाएगी, देन डॉट करके उसका एक्सटेंशन आ जाएगा उस एक्सेल फाइल की। और आपको पता ही है कि एक्सेल फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है XLSX। ठीक है, देन बॉक्स ब्रैकेट क्लोज होगा। अब दोस्तों आप, ये तो हो गया उस एक्सेल फाइल का नाम जहाँ से आप टेबल एरिया बना रहे हो। अब ये भी मैटर करता है कि उस एक्सेल फाइल के कौन सी सीट से आप मतलब एक्सेल डेटा से टेबल एरिया बना रहे हो। तो हमारा जो है सीट नेम है वो है रॉ डेटा। ठीक है, देखो सीट नेम भी आ रहा है रॉ डेटा देन एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये रेंज ले रहा है C1 से F25। ठीक है, तो ये, और दूसरी बात ये लॉकिंग डॉलर है, ये लॉक करके देगा सीट फाइल का नेम जो है, ये रेंज आएगा बाय डिफ़ॉल्ट लॉक करके आएगा। ठीक है, तो लॉकिंग के बारे में ये जो डॉलर साइन है ना, ये इसको बोलते हैं लॉक करना, मतलब ताला लगाना, किसी सेल के रॉ या कॉलम को लॉक कर देना। तो ये सीट में जितना जो हमारा रेंज है C1 से लेके F25 तक इसने बाय डिफ़ॉल्ट लॉक करके देगा जब आप किसी एक एक्सेल फाइल से दूसरे एक्सेल फाइल पे VLOOKUP फार्मूला लगाओगे तब। लेकिन इस डॉलर साइन के बारे में हम एक सेपरेट आपको वीडियो बना देंगे तो उससे ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं और कॉमा से इसको सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो दोस्तों ये है ऑर्डर आईडी हमारा लुकअप वैल्यू, यहाँ से मुझे ये चाहिए है ना। तो ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, कॉलम नंबर यहाँ पे देंगे हम 2, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे भी 0 देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देखो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर नेम आ गया। इस ऑर्डर कोड का जो डिस्ट्रीब्यूटर नेम है वो है डॉक्टर राधा कृष्णा। ठीक है, अब सिमिलरली क्या है कि अब यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर कोड है तो सबका निकालना है। तो क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे और कंट्रोल डाउन एरो करके डेटा के लास्ट में चले जाओ और इस बार राइट एरो करो और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करो, देन कंट्रोल D कर दो। तो देखो दोस्तों सबका निकल गया क्या, डिस्ट्रीब्यूटर नेम। अब इसको सेलेक्ट करो, ऑल्ट और CA कर लो कॉलम विड्थ सेटअप करने के लिए। ये देखो सेट हो गया और ये जो है सबका निकल गया। अगर आपको बॉर्डर डालना है इसमें, बॉर्डर देखो है ना, इसमें बॉर्डर है, इसमें बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर डालना है तो आप वो भी कर सकते हो, ऑल्ट HBA। ठीक है, शॉर्टकट क्या देना है आपको, ऑल्ट HBA। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ऑल्ट HBA का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं प्रेस किया ऑल्ट, H का मतलब होता है होम, होम के लिए आपको H प्रेस करना है। ठीक है, B का मतलब होता है बॉर्डर, ये देखो है ना B, तो आपको B प्रेस करना है B। A का मतलब होता है ऑल बॉर्डर, ये देखो जिसमें होगा, देखो है ना यहाँ पे ऑल बॉर्डर, A प्रेस करोगे तो इसीलिए इसका शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट HBA। ठीक है, तो मैं इसको सेव किया। तो दोस्तों VLOOKUP का आज इतना ही था, मैंने जितना भी था कंडीशन इसमें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक कंडीशन और रहता है कि मैं जो आपको बताया हूँ, मैं ये एक्सेल रॉ डेटा फाइल पे आ जाता हूँ। अब मैं एक चीज़ मैं आपको बताया था कि मान लो यहाँ पे आपको आउटलेट नेम जो है निकालना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल VL टैब और लुकअप वैल्यू। इस बार दोस्तों हम क्या करते हैं, ऑर्डर कोड को ले लेते हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर नेम ले लेते हैं। ठीक है,
देन कोमा करते हैं। अब टेबल एरे दोस्तों क्या है, अब देखो दोस्तों मैंने कहा कि लुकअप वैल्यू जहाँ से है टेबल एरे आपको वहीं से बनाना है। वहाँ से आप राइट साइड जा सकते हैं लेकिन इधर से आप लेफ्ट साइड नहीं जा सकते हैं। और इस बार मैं क्या करता हूँ, टेबल एरे बनाने के लिए लेफ्ट साइड जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। तो लेफ्ट साइड आने के लिए मैं क्या करता हूँ, टेबल एरे का यहाँ से ऐसे इसको बना दिया और कोमा एक दिया। और उसके बाद मुझे मान लो कि ये ऑर्डर आईडी था लुकअप वैल्यू, और यहाँ से मुझे क्या चाहिए, ये वाला डेटा चाहिए ई कॉलम का। तो ये हुआ 1, सॉरी लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, ये है डी कॉलम का, ठीक है, ये है हमारा लुकअप वैल्यू। अब यहाँ से मुझे क्या ये चाहिए, ठीक है, ये ई कॉलम का। तो यहाँ से पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, चूँकि लुकअप वैल्यू हमारा यहीं से है, देख लो D2 है ना, डी कॉलम वाला लुकअप वैल्यू है। तो ये वाला चाहिए, तो मुझे कॉलम नंबर के लिए 2 प्रेस करना पड़ेगा और कॉमा देन 0 देन ब्रैकेट क्लोज। अब देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें मैंने एक तो गलती मैं आपको बता के किया हूँ कि लुकअप वैल्यू हमारा डी कॉलम से था और हमने टेबल एरे के लिए लेफ्ट साइड वाला भी मैंने सेलेक्ट कर लिया था। तो अब देखो क्या होगा, एंटर प्रेस करते हैं, ये नोट अवेलेबल आ जाएगा। ये देखो दोस्तों डेटा नोट अवेलेबल। तो इट मीन्स आपको ध्यान रखना है कि आपने जहाँ भी लुकअप दिया, और सॉरी लुकअप वैल्यू आपने जहाँ से लिया, टेबल एरे आपको वहीं से स्टार्ट करनी है। और राइट साइड आप कितनों भी सेलेक्ट कर लो लेकिन लेफ्ट साइड वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यही फंडा है वी लुकअप का। तो मैं आपको दिखा भी दिया हूँ यहाँ पे। अब देखो मैं इसी फॉर्मूला को एडिट करता हूँ और इस बार जो है ये टेबल एरे को हटा देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ F2 प्रेस करता हूँ और इस बार टेबल एरे क्या करता हूँ मैं यहीं से लेता हूँ। चूँकि मैं यहाँ पे था लुकअप वैल्यू ये वाला, तो मैं यहीं से बनाऊँगा और ऐसे बनाऊँगा टेबल एरे। अब ये काम करेगा, ठीक है। देखो मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो ये देखो आपको, सॉरी ये आउटलेट नेम नहीं है, ये है एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूटर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ऑल्टो CA। तो देखो दोस्तों आपको ये मिल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लुकअप वैल्यू से जब आप टेबल एरे बनाओगे तो ध्यान में रखना कि जहाँ पे आपका लुकअप वैल्यू है वहीं से आप टेबल एरे बनाएंगे। राइट साइड आप बना सकते हैं लेकिन लेफ्ट साइड नहीं जाना है टेबल एरे बनाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे कंट्रोल डाउन एरो करके जाते हैं। पहले देख लेते हैं कि कौन सी यहाँ H कॉलम में, ठीक है। अब मैं यहाँ से आता हूँ H कॉलम में और इसको कंट्रोल शिफ्ट अप एरो देन कंट्रोल D कर देना है। तो सबका जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर एम्प्लॉय आईडी दे देगा, ठीक है। तो ये थी वी लुकअप का कमाल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला एक्सेल में क्या है, ठीक है। आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है एक्सेल से रिलेटेड वो मैं आपको बनाता रहूँगा और आज से मैं एक्सेल के लिए भी कभी कभी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।